Assalamu alaikum. This is Rabia Kamran on behalf of Chalo Padho with Rabia, and the topic is algebraic manipulation, and this is past paper 2019, and we are going to start it. Attempt either part A or part B of question number 1. Question number 1 is of total 5 marks. Part A, simplify this. Okay, to express this, you need to simplify this expression. You need to transform it like this. Okay, so let's get started. Let me write it first. A cube x square minus 2a square xb plus ab square, and divided by this term, so it will go in the denominator because it is dividing this. That's why a cube x square minus ab square. Now what will you do? You can see that a is common here. This is a, the smallest power of a is 1, so I will take out a as common. A square x square minus 2axb plus b square. Okay, and now in the denominator, this is, I need to find out a as common. This is a square x square minus b square. Okay, now I can cancel it, and now you can see that I can write it like this. Inside the bracket ऐसे लिखेंगे, minus 2 of formula ax, this will go there, and from here let me write it like this, b square, and b will come here as, and now in the denominator I can write it like this, ax whole square minus b square. अगर इसको गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फार्मूलाज यहाँ आपके नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ a square. Let me write over here, because a square minus 2ab plus b square equals a minus b whole square, and in the denominator this is the formula of a square minus b square. You can write it like this, a plus b and a minus b. So let me write it over here. That is ax minus b whole square, and this is ax plus b in the denominator and ax minus b. So I can cut this by this, that is ax minus b upon ax plus b. This is our answer, and you can see that this is here the same. I have transformed this to this. Show you this is the best response. The same thing is going on over here. यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है. नाउ दिस इज़ वीकर रिस्पॉन्स. में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वॉट एवर इज़ रिटन ओवर दिया. पहले इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा है, और उसके बाद इसमें से इन्होंने ए को कॉमन लिया है, इधर भी ए को कॉमन लिया है, ए कट किया. ये भी समझ में बात आती है, बट यहाँ देखें ये मिस्टेक है. इन्होंने ए स्क्वायर, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है, इसमें आप इस तरह डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. दिस इज़ रॉन्ग. ओके, फर्स्ट आप इसमें से कॉमन निकालते हो, जैसे कि पहले निकाला, ए कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाला और कैंसिल किया. यहाँ आपने कॉमन भी नहीं निकाला है इन्होंने, और इसको इन्होंने यहाँ कैंसिल किया है, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा आंसर इसका रॉन्ग हो गया. नाउ दिस इज़ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Complete the solution of the square root of an algebraic expression by filling the space provided. Hence, verify your answer. Okay, so expression is given over here. So expression is given over here, which we need to find out the square root of this. Okay, so let's get started. You can see that there are some blanks over here, and this is 36x raised to the power 4. When you multiply 6x square by 6x square, you can get 36x raised to the power 4. Okay, so now you will add 6x square plus 6x square, that would be 12x square. Okay, now what will you do? You need to fill this blank. You can see that whatever will be over here, we will shift it. We will write down it
ओवर देयर, ओके, माइनस नेगेटिव 96x³ तो यही नेगेटिव 96 हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज नेगेटिव 96x³, ओके। यहाँ अभी हम कुछ नहीं लिख सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग हियर एंड 12 इज देयर। तो अब देखें यह हम किस तरह बनाते हैं, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। सो व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर टू गेट 96 ओवर देयर, ओके। यहाँ हम क्या रखेंगे, यानी 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास ये 96 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 12 आर 96, 8 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है, एंड दिस इज x², और यहाँ आपके पास x³ है, सो आई विल टेक हियर x, ओके। माइनस साइन क्यों लिया है, इसलिए कि यहाँ पर मेरे पास माइनस साइन था, तो नीचे भी माइनस आना चाहिए, देन आफ्टर चेंजिंग द साइन वी कैन कट इट, ठीक है। तो यहाँ आपके पास नेगेटिव 8x आ गया, नेगेटिव ये 96 आ गया, एंड आई विल पुट, so according to the law we have written 8 over here, and 8 and 8 that would be 16। अब मैं इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, that would be 64x², so I will write it over here 64x², okay। अब हम टर्म कौन सी बनाने जा रहे हैं, ये वाली टर्म बनाएंगे और यही वाली टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए कि यहीं से तो हम इसको नीचे राइट डाउन करते होते हैं। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि 64 और 12, तो 64 सपोज आई कैन राइट हियर लाइक दिस, y हो सपोज कि इधर हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आएगा y माइनस 64 विल बी इक्वल टू 12 बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 12 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 76। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने जहाँ y लिखा है इसकी वैल्यू मेरे पास होगी 76, ओके। तो 76 प्लस 70 पॉजिटिव 76 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 64, दैट इज 12x², दैट 76 x² विल गो अप, यहाँ आपके पास ब्लैंक में 76x² आ जाएगा। दिस इज आगे अगर आप बढ़ें तो यहाँ लिखा है माइनस ऑफ 16x, माइनस ऑफ 16x यू कैन राइट इट हियर, यहाँ आपके पास 16 आ जाएगा। We need to make this term, okay, in order to make this term we need this, and before this we need this, okay। अब यहाँ पर क्या चीज़ आई, यहाँ आप देखिए कि आपने ये जो 12x² था, 12x² माइनस 16x प्लस ब्लैंक, ये लाने के लिए मुझे अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 12x² आ जाएगी, तो दैट वुड बी प्लस ऑफ 1, ओके। 1 से 12x² को किया तो 12x² आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 16x दैट वुड बी नेगेटिव 16x आ गया, एंड देन प्लस प्लस इसी 1 के अंदर हम एक और 1 को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो प्लस 1 1 ज़ार 1, यही 1 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और यही 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ओके। अब आप अगर देखो तो दैट विल बी कैंसल्ड, दैट विल बी कैंसल्ड, एंड दैट वुड ऑल्सो बी कैंसल्ड। तो इस तरह से आपके पास ये तमाम ब्लैंक्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे, ठीक। सो दिस इज़ द बेटर रिस्पॉन्स। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जितना भी मेथड है और इसको जो सॉल्व किया गया है और ब्लैंक्स को फिल किया गया है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आई हैव सॉल्व ओवर दिया, ओके। अब यहाँ एक चीज़ आई फॉरगॉट हियर दैट द वेरिफिकेशन इज ओवर दिया, उन्होंने पूछा था, इट इज़ बीइंग कॉल्ड इन द क्वेश्चन दैट यू नीड टू verify also, ठीक। now if we have square root which is 6x² minus 8x plus 1 जो कि हमारे पास यहाँ आया है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए अगर इसी को मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इसका होल स्क्वायर ले लूँ, ओके, प्लस 1 लाइक दिस, तो मेरे पास जो मेरा इसकी जो प्रोडक्ट आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। अगर ये आ रही है इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट, स्क्वायर रूट इज करेक्ट। तो यहाँ इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपली आप भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए किस तरह मल्टीप्लाई किया, 6x² लिखने के बाद ये टर्म आ जाएगी, देन माइनस नेगेटिव 8x लिखने के बाद दोबारा ये टर्म, और प्लस 1 लिखने के बाद दोबारा ये टर्म, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस, ओके। यहाँ देखिए सॉल्व करने के बाद आपके पास वही टर्म आ चुकी हुई है जो कि आपके पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरीफाइड, तो वी आर डन विद, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स वर्स्ट रिस्पॉन्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी गड़बड़ की है,
इन्होंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36 एक्स रेज टू द पावर 4 बना लिया। यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गई है, दैट्स वाई दैट वुड बी रॉन्ग। आपको यहाँ पर वेरिएबल लिखना ज़रूरी है, ओके। इसलिए कि जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो देन यू कैन गेट दिस एक्स रेज टू द पावर 4, अदरवाइज नो। इसी तरह यही मिस्टेक जो है वो कैरी फॉरवर्ड होकर और इन्होंने यहाँ पर वो भी नहीं, ब्लैंक को भी नहीं फिल किया है, ये वाली ब्लैंक को यहाँ इन्होंने 1 ठीक लिखा है, तो न जाने कैसे बस ये 64 यहाँ लिखने के बाद ये भी ब्लैंक नहीं इन्होंने फिल की है। तो इस तरह से ये एक रॉन्ग मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओके। तो इस तरह से हमारा ये ईयर कंप्लीट होता है 2019।